Good morning, students. Today we'll discuss about our next topic, that is the types of unemployment, which we have classified on the basis of geographical location. Okay. In rural areas, basically two types of unemployment are prevalent. One is disguised unemployment, and the other one is seasonal unemployment. Whereas in urban areas, the types of unemployment which are mostly prevalent are industrial unemployment and educated unemployment. Okay. Now, what are these kinds of unemployment? Let's discuss. Uh, First of all, the disguised unemployment, which is basically seen or observed in rural areas. So, what is disguised unemployment? Basically, disguised unemployment is observed or a kind of unemployment where more number of persons are engaged to do a work than the required ones. Okay, that means जितने वर्कर्स की किसी काम को करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, उससे ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे लगे हुए हैं. ओके, that means when the number of workers engaged in a job is much more than the actually required, that means the number of workers who are doing or who are working are more than the required ones. ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. That is disguised unemployment. Okay, in such kind of unemployment, each and every worker is doing a sort of work or a kind of work. Okay, nobody remain or sit idle. Okay, कोई भी खाली नहीं बैठा है, काम हर कोई कर रहा है. That means everyone seems to be employed. Okay, और everyone seems to be engaged. Clear? कोई खाली नहीं बैठा है, काम कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट इज कि जो टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ सरप्लस वर्कर्स आर बीइंग रिमूव्ड. ओके, टोटल आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस होगा तब भी जब हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ही इंगेज किए हैं, और टोटल आउटपुट उतना ही रहेगा तब भी जब हमने more than the required numbers. For example, if 4 workers are required to produce 5 units. Okay, 5 units को produce करने के लिए 4 workers are required. Okay, if we have to produce 5 units, okay, we have to produce 5 units, and the number of workers are 6 who are engaged in producing these 5 units. Okay, so required number was 4 workers, but now 6 workers are being engaged or doing that particular work. Clear? That means the 2 workers are surplus. 2 वर्कर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, ठीक है. अगर 4 वर्कर भी होते तो भी 5 यूनिट से प्रोड्यूस होती, और 6 वर्कर्स भी मिलकर 5 यूनिट से प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो पॉइंट इज टोटल आउटपुट विल रिमेन सेम. ठीक है. ओके, इफ वी रिमूव द एक्सेस और द सरप्लस वर्कर्स, टोटल आउटपुट डज नॉट गेट अफेक्टेड. टोटल आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो एक्सेस वर्कर्स हैं, सरप्लस वर्कर्स हैं, ओके, प्रॉब्लम ये है कि दीज कुड बी यूटिलाइज्ड और दीज कुड बी एंगेज्ड somewhere else in other productive activities. Okay, so that the total or overall output as well as the income can be increased. अगर इन जो एक्सेस या सरप्लस वर्कर्स हैं, इनको हम वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पे लगाएं तो एक्सेस या एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है, जो कि इनकम को भी इंक्रीज करेगा. ओके, सो दैट मीन्स द पॉइंट इज द एक्सेस ऑफ द सरप्लस वर्कर्स, ओके, देयर एबिलिटी और कैपेबिलिटी इज गोइंग इन वेन. ओके, वेस्ट हो रही हो, व्यर्थ जा रही है, क्योंकि टोटल आउटपुट अभी भी उतनी है और तब भी उतनी होगी जब सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स ही हम इंगेज करेंगे. ऐसा होता क्या, मेनली एग्रीकल्चर, रूरल एरिया की प्रॉब्लम है, तो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है. एंड वाई इज इट ऑब्जर्व्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन रूरल एरियाज ओनली? रीजन बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन और दे आर एंगेज ऑन देयर ओन फील्ड और फार्म. ओके, सो वट एवर द नंबर ऑफ members in a family or whatever is the size of the family, all are doing in their own field or farm. Okay, because they do not have the alternate employment opportunities. Okay, मतलब अगर चार नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है, तो सारे के सारे खेती में ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है वो लैग्स बिहाइंड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ओके, सो लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो टर्शरी सेक्टर है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, एक तरीके से हम बोलें, लाइक बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो सेक्टर दे आर फेल्ड टू प्रोवाइड और क्रिएट
alternate employment opportunities for such people, those who are engaged in excess number of वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर ने तो एक्सेस को भी एब्जॉर्ब कर लिया है देखा जाए तो। ओके, जो एक्सेस या सरप्लस वर्कर्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट सिटिंग आइडल। ओके, दे आर डूइंग देयर जॉब और दे आर डूइंग देयर वर्क इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ओके, सो दैट मीन्स एग्रीकल्चर ने तो एक्सेस को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर में। दैट मीन्स दे आर नॉट क्रिएटिंग ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ताकि जो सरप्लस वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर में। ओके, सो फर्स्ट रीजन कि देर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन industrial sector as well as tertiary sector, or you can say there is lack of alternate employment in industry or tertiary sector. Okay, second one, the growing size or rising size of the family. Okay, family size is continuously rising, but the land holding, size of land holding is fixed or remains fixed. Okay, एक फैमिली के पास जो लैंड होल्डिंग्स है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, ठीक है, जो उनको पैटर्नली लाइक एंसेस्टर्स से उनको मिला है, ठीक है, जो उनकी लेगेसी है, विरासत में मिली है जो उनको, ठीक है, वो लैंड होल्डिंग जो है फिक्स है, उनको अपने दादा परदादा या लाइक पापा से मिला है, दैट इज फिक्स। बट न्यूक्लियरिटी अगर देखा जाए, न्यूक्लियरली अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो फैमिली जो है, साइज ऑफ द फैमिली इज गेटिंग इंक्रीज। ओके, जनरेशन टू जनरेशन और ओवर द जनरेशन। ओके, फैमिली साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो लैंड साइज है, लैंड होल्डिंग का साइज है, वो सेम रहा, जो दादा से मिला, परदादा से मिला, लाइक पापा से मिला, ठीक है, वो लैंड होल्डिंग का साइज सेम है। बट उनकी जो फैमिली थी न्यूक्लियरली वो डिवाइड हो गई थी, ठीक है, लाइक दादा के दो बेटे थे, ठीक है, तो उन दोनों में दादा की ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, सो एक के हाफ आई और दूसरे के भी हाफ आई, देन उसकी अलग फैमिली, मतलब उसके जितने बेटे हुए, ठीक है, लाइक जो भी उनका फैमिली स्ट्रक्चर चल रहा है, ओके, ऑफस्प्रिंग्स के बेसिस पे हम देखेंगे, तो वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती गई। ओके, टोटल सेम रहा, लेकिन फैमिली साइज इंक्रीज होने की वजह से जो पर हेड जो लैंड होल्डिंग्स है वो डिक्रीज होती गई। इस वजह से भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली कि लैंड होल्डिंग का साइज क्लियर, मतलब रियल टर्म्स में तो डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, बट फैमिली साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिक्रीज हो रहा है, ओके, ओवर द जनरेशन। सो एक रीज़न फैमिली साइज भी हो सकता है जिस वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ओके, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, लैंड होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। सो इट इज़ द रीज़न दैट रूरल एरियाज में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद this is also related with the rural areas, or this is also experienced in rural areas. Why so? Because mainly the rural people are engaged in agricultural activities, and we know that since agriculture is a seasonal activity, so the workers or the people who are engaged or who are attached with such activities will remain unemployed ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ठीक है, हम जो क्रॉप्स हैं सीजन बाय सीजन ग्रो करते हैं, तो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ठीक है, तो ऑफ सीजन के ड्यूरिंग या ड्यूरिंग सम मंथ्स इन अ ईयर द पर्सन्स और द एग्रीकल्चरिस्ट और द फार्मर्स और द फार्म लेबरर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। ओके, ऑफ सीजन के ड्यूरिंग मेनली, या ईयर के कुछ मंथ्स के ड्यूरिंग फार्म लेबर्स को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, बिकॉज उस टाइम पे फार्म लाइक खेतों में कोई काम नहीं है। ओके, सो बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, द पर्सन्स और दोज हु आर engaged in agriculture will have to remain unemployed for some months during a year, or you can say ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ओके, ऑफ सीजन के ड्यूरिंग भी उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक साल के दौरान कुछ महीने उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। ओके, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, दैट इज ड्यू टू द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर में ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि हम क्रॉप सीजन बाय सीजन ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउअडेज इफ वी ऑब्जर्व, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है, रूरल एरियाज में, बिकॉज
लाइक जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जिसकी वजह से लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने पहले ऑब्जर्व किए या स्टडी किया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के आ जाने की वजह से जो फॉलोइंग की प्रैक्टिसेस हैं, लैंड को आइडल या खाली छोड़ने की प्रैक्टिसेस है, वो ख़त्म हो गई या कम हो गई, जिसकी वजह से फार्मर्स आर नाउ एबल टू ग्रो मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर, ओके, क्योंकि उनको खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो एक एक्स्ट्रा क्रॉप वो ग्रो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, व्हाट आर द types of urban unemployment we observe generally? The first one is basically the urban people are engaged or employed in industries. Okay, industrial unemployment is prevailing in urban areas. Okay, so the type of unemployment which is prevailing in urban areas, that is industrial unemployment. Okay, industrial unemployment means the persons or the people who are engaged in work related to industries, or those who are working in industries, sometimes they have to remain unemployed. Okay, so the people who are working in industries remain unemployed, that is known as industrial unemployment. Okay, वो लोग जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अगर उन्हें कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, तो दैट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, so what are the causes? First one is rapid rise in population over time. Okay, like industrial growth उतना तेजी से नहीं हो रहा है. Okay, the industrial growth is not so much rapid or not coping up with the rise in population. Okay, जिस स्पीड से population grow कर रही है, उस स्पीड से industrial growth नहीं हो रही. So industrial growth is not coping up with the population growth. That's why the number of workers are growing many folds. ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रो कर रही हैं. क्लियर? तो सम पीपल और सम वर्कर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड. क्लियर? सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज. एक ही रीज़न भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज का कॉन्सेंट्रेशन जो है अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, जिस वजह से फैक्टर्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है या परफेक्ट मूवमेंट नहीं. मतलब हर कोई जो है उन इंडस्ट्रीज तक या उन एरियाज में माइग्रेट नहीं हो सकता जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है. ओके, लाइक हर अर्बन एरिया में इक्वल इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है. किसी में ज़्यादा, लाइक यू कैन से सम सिटीज मे हैव इमर्ज्ड एज इंडस्ट्रियल हब्स while the others may not have. Okay, कुछ सिटीज़ जो है इंडस्ट्रियल हब्स के रूप में डेवलप हुई हो सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं हुई हो सकती है. मतलब हर एक सिटी में इंडस्ट्रियल सेटअप सेम नहीं होगा. सो यू कैन से माइग्रेशन प्रॉपर या परफेक्ट नहीं है. ठीक है, वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप ज़्यादा है, ठीक है, तो दूसरे लोग दूसरी जगह से माइग्रेट प्रॉपरली या परफेक्टली नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, कुछ वजहों से, रीजन की वजह से. ओके, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक रीज़न हो सकता है. इफ़ आई से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेटअप वहाँ पे, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो देखा जाए तो मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है. इसलिए कुछ लोग वहाँ पे माइग्रेट नहीं होते हैं ये सोचते हुए कि उनका वहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा. ठीक है, उनको सेविंग्स या फिर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. सो परफेक्ट माइग्रेशन नहीं होती है. क्लियर? सो यू कैन से ये भी एक रीज़न हो सकता है. या फिर दूसरी तरफ मैं कहूँ, एक परफेक्ट माइग्रेशन ना होना, दूसरा मैं कहूँ ज़्यादा माइग्रेशन होना. ओके, दो कॉजेज या दो रीजन इसी पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा माइग्रेशन होना. ओके, मेनली इंडस्ट्रीज जो है अर्बन एरियाज में कंसेंट्रेटेड है, अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश है. तो द पीपल इन द सर्च ऑफ जॉब माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन और रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट हो जाते हैं बिग सिटीज़ में इन द सर्च ऑफ जॉब. ओके, सो इन माइग्रेशन की वजह से जो अर्बन एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. ओके, and it is observed many a times that those who are migrated to urban areas are not successful. Everyone is not successful to find out a relevant job for himself or herself after migrating. Okay, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेशन के जस्ट आफ्टर ही हर किसी को सुटेबल या रेलिवेंट जॉब मिल गई हो. ओके, दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम. जॉब ढूंढने के लिए टाइम लग सकता है. ठीक है, तो उस टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे. लेकिन पॉपुलेशन तो मतलब माइग्रेशन तो कंटिन्यूसली हो रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ी. ठीक है, लेकिन सबको एक आते ही जॉब नहीं मिली, इमीडिएटली जॉब नहीं मिल गई. ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, माइग्रेशन से क्या किया, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ही इंक्रीज किए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड से ज़्यादा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज किए. ओके, बिकॉज पीपल हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड for which they are searching their jobs. Okay, or until or unless they get a or they find a suitable or relevant job, they remain unemployed. Okay, जब तक कि नहीं मिल जाती suitable job तब तक unemployed रहना पड़ता है. Okay, तो migrations continuously हो रही थी, लेकिन jobs उनको मिलने में टाइम लगा. तब तक
क्या हुआ, अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ही पाइल अप होते गए, क्योंकि माइग्रेशन कॉन्टिन्यूस हो रही थी लेकिन जॉब्स कॉन्टिन्यूसली नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो गई, जिस वजह से भी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ओके, सो हियर इज अ लाइन और इज अ पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, व्हाई rural unemployment is considered as a, sorry, urban unemployment is considered as a spillover of rural unemployment, okay. Or you can say industrial unemployment, it sometimes it is also asked as urban unemployment, okay. So urban unemployment, why is urban unemployment considered as a spillover of rural unemployment, okay. That means कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इन द सर्च ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही, जिस वजह से इन द सर्च ऑफ जॉब दे आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। जॉब की तलाश में वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज हो गई। कौन से नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, वो लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे वो अब माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ गए, इसलिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है, ओके। नेक्स्ट वन इज लाइक इंडस्ट्रीज आर using capital intensive technique for their sake or for their benefit, okay. That's why less and less labor force is required, as a result again industrial unemployment is increasing, okay, क्योंकि capital intensive technique use करें, मशीन ज़्यादा यूज करी जा रही हैं। Next type of unemployment is educated unemployment, okay. Educated unemployment means the people are highly educated but they are failed to find a job related to their skills or level of education, okay. People are educated, people are skilled, but they are failed to get or find a job relevant to their skills level और educational level, okay. मतलब highly educated है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, या मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट है, ठीक है, लाइक PhD होल्डर है। तो वो किस तरह की जॉब ढूंढेगा, एक हाई स्किल्ड जॉब ढूंढेगा, लेकिन उनको हाई स्किल्ड जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। सो पढ़े लिखे बेरोजगार है, दैट मीन्स दे आर लाइक यू कैन से दे आर एजुकेटेड बट दे फेल टू फाइंड अ जॉब रेलिवेंट टू देयर स्किल्स, ओके। पढ़े लिखे भी हैं, स्किल्ड भी हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। क्लियर, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन है लाइक आर एजुकेशनल system is not fulfilling the requirement of the industries, okay. Whatever the skills or the level of skills industries are demanding, the educational institutions are not capable to provide, clear, or educational system is not capable to provide that kind or that level of skill to the workforce which is being demanded by the industry, okay. That means industrial और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में गैप है, उनकी जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनके बीच में गैप है। इंडस्ट्रियल लेवल जिस तरह की डिमांड, स्किल्स की डिमांड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस तरह की स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, ओके, वर्कफोर्स को, ओके। क्लियर, more clearly if we say our education system is not practical based, it is not vocationalized, okay. job oriented training या skills inculcate नहीं करता है, it is merely or more depending on the theory, okay. ये practical की बजाय theory के ऊपर ज़्यादा dependent है, ठीक है। और you can say it is degree oriented, job oriented नहीं है, vocationalization नहीं है, मीन्स job oriented नहीं है, degree oriented है, जिस वजह से सिर्फ like degrees ही produce हो रही हैं, ठीक है, skilled workers produce नहीं हो रहे हैं। Next is we discuss about some more common types of unemployment. Open unemployment is just unemployment, okay. जो unemployment हमने पढ़ा वही open unemployment है, like the workers who are able and willing, ठीक है, able, skilled and willing to do a job but they do not get or find a job are called unemployed. That is also open unemployment, a situation or a condition where people are skilled, able and willing to do a job. जब skilled भी हैं, willing भी हैं, ठीक है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, they are not able to find or get a job, that is open unemployment, okay. Next one is structural unemployment, okay. Now what is structural unemployment? Structural unemployment is related with the structure of the economy, okay, the structure in the economy. Now what is the structure? The structure which is related with the techniques of production, okay. Like over the years techniques में change हो रहे हैं, with the change in or passage of time production की जो techniques हैं, methods हैं, उनमें change होते जा रहे हैं, ठीक है। नई नई मशीनें evolve हो रही हैं, like inventions हो रही हैं, ठीक है। तो with the advent of new machines or improved machines, ठीक है,
every couple of years some people become unemployed due to change in technology. Okay, so structural unemployment is the kind of unemployment or the type of unemployment which occurs due to change in technology. जब प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी मशीन या पुरानी टेक्नोलॉजी से फैमिलियर थे, एक्सपर्ट थे। नई टेक्नोलॉजी या नई मशीन उनको यूज़ करनी नहीं आती है, तो कंपनी ने उनको हटा दिया है, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले काम सारा मैन्युअली होता था, देन कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स ने ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर लिया। ओके, सो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हुए, ठीक है, सो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ लाइक फॉर एग्जांपल डिलीवरी सिस्टम के लिए, लाइक जो भी डिलीवरीज होती है, फिजिकल डिलीवरीज, लाइक कोई गुड्स या कुरियर डिलीवर करना है, तो नाउ इट इज इन डेवलप्ड कंट्रीज ड्रोन डिलीवरी इज बीइंग इन ट्रेंड। सो जो ह्यूमन बींग्स जो डिलीवर करते थे, डिलीवरी बॉयज, ठीक है, उनका नंबर जो रिक्वायरमेंट है, उनकी डिमांड है, वो कम हो गई। तो दैट मीन्स वो लोग जो डिलीवरी बिजनेस से जुड़े हुए थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस वजह से हुआ? टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जब ऐसा होता है। नेक्स्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, दो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द वर्कर इज आइदर द वर्कर इज नॉट एबल टू वर्क फॉर फुल टाइम। ओके, जितना स्टैंडर्ड वर्क आवर्स 8 आवर्स जैसे इंडिया में माना जाता है कि 8 स्टैंडर्ड वर्क आवर्स हैं, ठीक है, एक दिन में एक पर्सन, एक वर्कर जो है 8 आवर्स स्टैंडर्ड बेसिस पे काम कर सकता है। तो दीज आर द 1 मैन डे और 8 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। ओके, सो इफ अ वर्कर इज फाइंडिंग अ वर्क for 6 hours or 4 hours, that is under employment. Okay, so the worker is not getting or not working for full time in a day, that is under employment. First condition. Second condition is if the worker is working, okay, उसमें क्या था, 4 घंटे काम किया लेकिन अगले 4 घंटे वो फ्री बैठा रहा, दैट मीन्स वहाँ पे दिख रहा है कि वो अगले 4 घंटे उसके पास कोई काम नहीं है, पार्ट टाइम काम कर रहा है उससे। ओके, 2 घंटे का काम मिला है, 4 घंटे का काम मिला है, 6 घंटे, बाकी टाइम वो खाली बैठा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, मतलब वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि वो अनएम्प्लॉयड है कुछ टाइम के लिए, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुली अनएम्प्लॉयड नहीं है। नेक्स्ट वन इज when the workers or the people are working but not according to their capacity or skills, level of skills. Okay, they are working at lower skilled work or job. Okay, like एक इंजीनियर प्यून की जॉब कर रहा है तो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वो अपनी स्किल्स का लेवल या लेवल ऑफ स्किल्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ओके, काम तो कर रहा है बट स्किल्स यूज नहीं हो रही है जो स्किल्स उसके पास है। ओके, दैट इज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दिख नहीं रहा है, काम तो कर रहा है पूरे 8 घंटे लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जो काम वो कर सकता है, ठीक है, मोर फ्रूटफुली, मोर प्रोडक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो मूवमेंट की, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, फिजिक्स की जो फ्रिक्शन फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के मूव करने पे उनके बीच क्रिएट होती है, या एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से दोनों सर्फेसेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट की सर्फेस के बीच में क्रिएट होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, या दोनों मूव करें। ओके, तो जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ओके, सो यहाँ पे भी वही है कि व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक वर्कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, तो उसे कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया जाता है, लाइक व्हेन द गर्ल्स शिफ्ट टू देयर इन लॉज और मूव्स टू देयर इन लॉज आफ्टर मैरिज। ओके, so they have to remain unemployed if they are working before the marriage, if they are working before the marriage and they have to shift after marriage to their in-laws, so they have to remain unemployed. Okay, क्योंकि नई जगह पे जाके काम ढूंढने में टाइम लगेगा तो कुछ टाइम के लिए उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, ठीक है, सो दैट इज फ्रिक्शनल। ओके, मूव नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड नहीं थे लेकिन मूवमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, कि शादी हो गई इसलिए उनको इन लॉज के वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, तो जाते ही जॉब नहीं मिल जाएगी, कुछ टाइम के लिए उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा, या फिर फैमिली शिफ्ट हो गई है तो हमें अपनी पुरानी जॉब छोड़ के नई जगह पे जाना पड़ेगा, सो दैट इज फ्रिक्शनल, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तब ये क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक साइकिल्स। ओके, इकोनॉमिक साइकिल्स मीन्स इकोनॉमी जो है साइकिल्स में मूव करती है, इकोनॉमिक साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ओके, जिनको हम ब्रेक कर लेते हैं हेमिस्फीयर्स में, लाइक दिस वन। ओके, ये पूरा सर्कल था, ठीक है, साइकिल था, हमने इसको ब्रेक करके आधा हिस्सा ऊपर रख दिया और आधा उल्टा करके नीचे उसके साइड में रख दिया। ओके,
So that is the economic cycle. Okay, this is known as boom period. ठीक है, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. दिस इज डाउनवर्ड इज रिसेशन पीरियड. ओके, जहाँ पे मंदी आना शुरू हो जाती है, डिमांड कम. दिस लोएस्ट पॉइंट इज डिप्रेशन. ओके, बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुँच गया है. देन अगेन रिकवरी, जब ये ऊपर शुरू हो जाता है जाना, राइज होना, दैट इज रिकवरी. एंड अगेन टॉप पे पहुँच जाता है तो बूम. ओके, तो दीज आर रिलेटेड विद द डिमांड. ओके, डिमांड बहुत ज़्यादा है बूम में, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी. फिर रिसेशन और डिप्रेशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी. ठीक है, ये साइकिल चलता जाता है इकोनॉमी में. ठीक है, फॉरएवर चलता जाता है ये, कभी बूम है, कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है, कभी रिकवरी है. ठीक है, ये साइकिल चलता जाता है. सो इकोनॉमी में साइकिल जो है एवरलास्टिंग है, जिस वजह से जो प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी एवरलास्टिंग है, कभी ज़्यादा कभी कम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज होती है. नाउ हियर आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. ठीक है, सो first is slow economic growth. Okay, our economic growth is very low, like GDP rate, the growth rate or the GDP is very low, just that is related to the production. Okay, production कम हो रहा है, productivity कम है, जिस वजह से GDP की rate low है. ठीक है, जिस वजह से productivity कम है. नेक्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. दूसरा रीज़न ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिस वजह से नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ वर्कफोर्स का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है तेज़ी से. ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही. ठीक है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंक्रीज होंगे. एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. ठीक है, क्योंकि सीजन टू सीजन ही काम मिलेगा. लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं है फार्मर्स के पास. ठीक है, जिस वजह से दे हैव टू रिमेन ऑन रेनफॉल. ओके, जिस वजह से और रेनफॉल अनसर्टेन है, सो फार्मर्स जो लिमिटेड क्रॉप ही ग्रो करते हैं. लाइक कुछ जगह पे एक या दो क्रॉप ही ग्रो की जाती है, जिस वजह से वो कुछ टाइम ड्यूरिंग द ईयर अनएम्प्लॉयड रहते हैं. जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी क्या होता है कि सब लोग जो है एक फैमिली बिजनेस में ही इंगेज होते हैं. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन बिजनेस एक ही होता है, तो सारे उसी में इंगेज हैं. नेक्स्ट वन इज जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डीके हो गया, उनका खात्मा हो गया है, जिस वजह से वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए थे, आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड थे या फिर हायर्ड थे. ठीक है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, ये सारा कब हुआ था? ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ओके, नेक्स्ट वन इज लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ओके, लोगों की लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो लोगों की इनकम कम है. ओके, इनकम कम है तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होंगी. ठीक है, तो लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो क्रिएट्स लो प्रोडक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो रिसोर्सेज भी कम खरीद पाएंगे, रिसोर्सेज कम खरीदेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अगेन लेबर्स की रिक्वायरमेंट भी कम ही होगी, तो एम्प्लॉयमेंट कम है. ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं. माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों? रीज़न कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हो सकता है, रीज़न अदर भी हो सकते हैं, लाइक लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ओके, लाइक मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है, जो लाइक इंग्लिश को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो लोग जो फेमिलियर नहीं है इंग्लिश से, नॉन नेटिव है इंग्लिश के, ठीक है, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि उनके लिए बैरियर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं. ओके, सो ये मोबिलिटी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली परफेक्टली मूव नहीं कर पाते हैं, फार ऑफ एरियाज में दूर नहीं जा पाते हैं. ओके, पहले भी डिस्कस किया है कि मेट्रो सिटीज़ में है इंडस्ट्रियल सेटअप, तो कुछ लोग उन सिटीज़ तक माइग्रेट या उन सिटीज़ में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये कॉजेज थे हमारे, कुछ बेसिक से कॉजेज हैं. लाइक दो तीन तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, दूसरा परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन नहीं है. ठीक है, लाइक नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. लो इनकम भी एक कॉज हो सकते हैं, पॉवर्टी कॉज बना लें. ठीक है, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी, जिस वजह से सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट कम होगी. ओके, इम्परफेक्ट मोबिलिटी एक कॉज है. ओके, इस तरीके से हम कॉजेज पढ़ सकते हैं. ठीक है, याद रख सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड. ओके, कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं कॉजेज से. नेक्स्ट, आफ्टर कॉजेज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. ओके, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या परिणाम है, रिजल्ट क्या है जो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके,
These are divided into two parts, that is, one is economic consequence and another one is social consequence. Economic related with the money, ठीक है. Non utilization of manpower, अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स वर्कफोर्स. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, दोज हु आर विलिंग, एबल एंड स्किल्ड, ठीक है. दोज हु आर स्किल्ड, एबल एंड विलिंग टू डू अ जॉब, मतलब स्किल्ड एंड एबल है, वर्कफोर्स तो है, अवेलेबल तो है, बट उनको काम नहीं मिला, डू नॉट गेट और फाइंड एनी जॉब, ठीक है. तो स्किल्स तो है या वर्कफोर्स तो है, लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो मैन पावर तो हमारे पास है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से उन मैन पावर को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ओके, ये एक कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि अगर उस मैन पावर को हमको यूज़ कर पाते तो प्रोडक्शन बढ़ा पाते. लॉस ऑफ आउटपुट, अब लॉस ऑफ आउटपुट क्या है, मैन पावर अवेलेबल थी लेकिन अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से हम उन मैन पावर को यूज़ नहीं कर पाए, जिससे कि हम उस लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मैन पावर तो अवेलेबल थी, ठीक है, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया गया प्रॉपरली, आइदर डिस्गाइज वे था या अंडर एम्प्लॉयमेंट थी. ओके, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइक एक इंजीनियर तो था, ठीक है, लेकिन उसको प्यून की जॉब पे रखा गया था, ठीक है, तो उसकी स्किल्स मोर प्रोडक्टिवली यूज़ की जा सकती थी उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन उन्होंने नहीं की क्योंकि उनसे प्यून का काम करवाया जा रहा है उसको, ठीक है. तो यहाँ पे वो आउटपुट का लॉस हो गया जो स्किल्ड पर्सन प्रोड्यूस कर सकता था, ठीक है. नेक्स्ट वन इज लो कैपिटल फॉर्मेशन. लो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स लो सेविंग्स है, ठीक है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल भी, कैपिटल रिसोर्सेज, मशीन भी कम खरीदी जाएंगी. ओके, हियर इनकम से रिलेटेड था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से इनकम लोगों की कम है. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इनकम कम होगी, ठीक है, उल्टे रिलेशन होंगे. तो इनकम कम है तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल रिसोर्सेज कम होंगे. लो प्रोडक्टिविटी. ओके, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो पर जो यूनिट आउटपुट आएगी वो कम आएगी. एक वर्कर जितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो एवरेज निकालेंगे तो कम आएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल आउटपुट तो सेम है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी तो इंक्रीज हुए हैं. नेक्स्ट आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज. सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आर द लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयड पीपल है, इनकम सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिस वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो रहेगी. नेक्स्ट वन इज ग्रेटर इनइक्वालिटी. ओके, लाइक दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है. सो इनकम को लेके वहाँ पे इनइक्वालिटीज आएंगी, जिस वजह से सोशल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट, क्योंकि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन में दोनों कंडीशंस लेके चलते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ओके, सो इकोनॉमिक बेसिस पे भी सोसाइटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पुअर्स एंड नॉन पुअर्स. ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ पुअर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, जिस वजह से सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी. सोशल अनरेस्ट. सोशल अनरेस्ट मीन्स वो प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो जाएंगी, लाइक जो क्राइम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग सर्वाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है. अब इनकम नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो क्राइम्स करने लग जाएंगे, लाइक थेफ्ट कंडीशन, क्राइम्स, ठीक है, मर्डर्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, तो सोशल अनरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल मीन्स जो हैव एंड हैव नॉट्स हैं, हैव एंड हैव नॉट्स, लाइक मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, इनके बीच में स्ट्रगल हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास जो है लोअर पे जाना नहीं चाहती है, अपर तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, तो उनके बीच में स्ट्रगल हो जाएगा हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में, तो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी. नाउ सजेशन. सजेशन सिंपल है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दो बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है. कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करके कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है. सो इसकी यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लाइक कैपिटल आउटपुट रेशियो आज के टाइम पे 4.3 है, ठीक है. दैट मीन्स लाइक एक यूनिट, लाइक यू कैन से 1 रुपये की गुड प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4.3 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कैपिटल 4.3 रुपीज़, आउटपुट ₹1. 1 रुपये की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए 4.3 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट कम है, ठीक है. तो हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसे कम करना है, ठीक है, जिस वजह से लाइक हम बची हुई कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें. एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वोकेशनलाइजेशन या वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाए, जो कि रिसेंटली हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि 6th ऑनवर्ड्स ही वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे. सो स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट नाउ अ डेज. ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स
अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे? लेबर इंटेंसिव, बिकॉज वो मोर एंड मोर लेबर रिक्वायर करती है। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज करो अपनी कंट्री के हिसाब से। हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और ओवर पॉपुलेटेड है, तो वर्कफोर्स ज़्यादा है, तो हम कैपिटल रिसोर्सेज या मशीन की बजाय लेबर फोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करे गवर्नमेंट, लाइक एसएचजीज को प्रमोट करे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। कोऑपरेटिव एसोसिएशन सेटअप करें, सब्सिडीज के थ्रू उन्हें हेल्प करें, ठीक है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज वर द सजेशन, जो हम सजेशन दे सकते थे कि प्रोडक्शन इंक्रीज करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, लाइक इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज की जाए, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम करके इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज की जाए, ठीक है। एजुकेशनल पॉलिसीज में चेंजेस किए जाएँ, ठीक है, जिससे ज़्यादा स्किल्स जनरेट की जाए। टेक्निक में चेंज किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाए या उसको प्रमोट किया जाए, ओके। सो दीज वर द सजेशन टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट in the country. Next is the government policy and programs. Okay, what are the programs and the policies government has launched to remove the unemployment? Okay, ये हम पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो गवर्नमेंट के जो PAPs है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, ठीक है। वही सारे प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे। लाइक प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया प्रमोट करती है। प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, ठीक है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। MG नरेगा है, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, ओके। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम ये सारी पॉलिसी हम पहले पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं गवर्नमेंट ने रिसेंटली, लाइक 2015 में जो मुद्रा बैंक सेटअप किया है, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए, ठीक है, जिससे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस का बिजनेस एक्सपैंड किया जा सके, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सम रिसेंट पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये 3 रिसेंट पॉलिसीज हैं। स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव करके ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करके, लाइक राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन है, ठीक है। तो एंड कौशल विकास योजना है। ये सारी जो स्कीम्स है, दीज स्कीम्स आर लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ स्किल्स अमंग द वर्कर्स सो दैट दे कुड बी बेनिफिशियली यूटिलाइज और इंगेज्ड। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया कहता है कि जो MNCs है उनको अपने प्लांट इंडिया में लगाने के लिए प्रमोट करता है। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज ही सारी गुड्स प्रोड्यूस करें, नहीं, ये कह रहे हैं कि MNCs आके इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करें और इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। मतलब बाहर से प्रोड्यूस हुई गुड इंडिया में इंपोर्ट करके ना बेचें, वो अगर उनको अपने मार्केट में इंडिया में अगर बेचना है अपने प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्लांट सेटअप करके प्रोड्यूस यहीं पे करें और बेचें, ओके, दैट इज़ मेक इन इंडिया, ओके। स्टार्टअप इंडिया, जो नई नई इंडस्ट्रीज हैं, नई नई एंटरप्राइजेज हैं, उनको शुरू करने से रिलेटेड है। न्यू टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो पहले आइडियाज़ एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो नई तरह के बिजनेस एग्जिस्ट किए जाए, सॉरी सेटअप किए जाए, उनसे रिलेटेड है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज भी करती है, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो कुछ हम पॉवर्टी से उठा लेंगे, लाइक MG नरेगा उठा लिया, मुद्रा योजना उठा लिया, ठीक है, क्लियर। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना उठा लिया, एंड 3 या 4 ये स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो दीज वर द प्रोग्राम्स और द पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो ये सारे केसेस एंड पॉलिसीज थी जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने से रिलेटेड है, ओके।